Today, our resource person, Dr. Ashwini Kumar Singh, he is the uh, senior physiotherapist, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, PMR, All India Institute of Medical Science. So, and Dr. Ashwini Kumar, have you joined Dr. Ashwini Kumar ji? Good evening, sir. Okay. So, Dr. Ashwini Kumar Singh has extensive experience in physiotherapy, rehabilitation medicine, sports injury management, functional recovery, and evidence-based rehabilitation practices. His expertise has helped numerous athletes and patients regain mobility, restore function, and safety return to active life. During today's session, he will share valuable insight on the sports injury and injury prevention strategies, warm-up and cool-down techniques, first aid and RIC protocol, as we'll see. The rehabilitation principle returns to the play guidelines and the role of physiotherapy in inclusive sports coaching. He will be delivery. So I encourage every participants to actively engage throughout the session, take notes, reflect on the practical examples, and make the most of this valuable learning opportunity. We will also have the interactive session, question answer at the end. So, behalf of Bihar Disabled Sports Academy and the trainer programs, I extended my sincere gratitude to Dr. Ashwini Kumar Singh ji for accepting our invitation and sharing his knowledge and experience with all of us. So without further delay, it is my privilege to invite our respected resource person, Dr. Ashwini Kumar Singh ji, to deliver today's lecture. So virtual platform is now yours. Welcome. थैंक यू सर, शिवाजी सर, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया ट्रेन द ट्रेनर में ऐसा स्पीकर के रूप में आने का। और जो टॉपिक है, जैसे कि जो कोचेस हैं, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन को समझना, क्योंकि जी नॉर्मल खिलाड़ी में तो इंजरी होता ही है, लेकिन जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है इंजरी को। So we'll start, Rahul ji. Can we start slideshow also? Yes, Dr. Ashwini यस ji. सर। Yeah. हाँ, वे आप सबको सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो आपका सेशन है वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी उतरता है तो कोचेस में बहुत जोश होता है कि हमारा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जोश में कभी-कभी अगर हम प्रिकॉशन और हम लोग कुछ अगर सावधानी ना बरतें, तो खिलाड़ियों को इंजरी भी हो सकता है। तो हमारा पूरा सेशन कि खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए जिससे हम उनको स्पोर्ट्स इंजरी से बचा सकते हैं, या स्पोर्ट्स इंजरी होता है तो हमको कैसे मैनेज करें, पहले फर्स्ट एड हम क्या दें उनको, और फिर फर्दर हमारा मैनेजमेंट क्या रहे। फिर जब हमारा एथलीट या जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है वापस जब इंजरी के बाद दोबारा एक्टिव स्पोर्ट्स में जब आता है तो कैसे आए, उसका क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अबाउट मी। नेक्स्ट स्लाइड। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या सीखेंगे, हमने आपको बता दिया है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है आप वो समझेंगे, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है आप वो समझेंगे, किस तरह इसको हम लोग प्रिवेंट करें ट्रेनिंग के समय, क्योंकि ट्रेनिंग के समय भी कई सारे इंजरीज होते हैं। फिर है हमारा फर्स्ट एड टेक्निक कैसे अप्लाई करें, और सबसे पहला कि अंडरस्टैंड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन आखिर होता क्या है, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट सेफ रिटर्न टू स्पोर्ट्स, जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन जो पूछना होगा Doctor, आप लास्ट में पूछ सकते हैं, और अभी नोट Doctor, डाउन कर लेंगे Doctor, क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन। हाँ सर। Dr. Ashwini ji, हमारे many
trainers and coaches are from South India, another Okay, तो state Northeast. So we have to mix it, the okay, English okay, that's okay. bilingual. Okay. Okay, okay, that's good. So basically, in this presentation, we're going to understand what is a kind of sports injury a athlete faces, and how to rehabilitate them, how to do safe training, and how to bring that injured athlete back to the active sports. This we will learn. And what is sports medicine? As everybody thinks that sports medicine is like some medicine, यानी sports medicine क्या है कि दवा खाना है. बिल्कुल गलत है. Sports medicine is not दवा खाना, not eating medicine, but it is a science which include not only injury management also, but prevention of the injury. The sports medicine is a very vast science. और नेक्स्ट पर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजुरी प्रिवेंशन. स्पोर्ट्स मेडिसिन, इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अगर आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का नॉलेज है अच्छी तरह से, तो आप इंजुरी को प्रिवेंट कर सकते हैं. Okay, you can save an athlete from injury during the training and in the active sports. या आप ट्रेनिंग के समय और जब वो जब एथलीट्स हमारा स्पोर्ट्स खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स में होगा, उसमें भी आप अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन के नॉलेज से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंजुरी असेसमेंट. Injury assessment is the most important part of for the and of a coaches. कि हम आपको कहीं से आवाज आ रही है, काइंडली म्यूट इट. कुछ लोग आवाज आ रहा है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, सॉरी. हाँ, तो इंजुरी असेसमेंट इज द प्राइम गोल ऑफ अ कोच. कि कहीं भी जहां इंजुरी होता है, सबसे पहले कोच होता है. कोच इज इन द फ्रंट ऑफ द एथलीट. So he have to assess the injury. It is acute, chronic, either it is a fracture or this kind of thing. You have to just call the physio on the field or any sports medicine expert which can come and assist you in the management of the athlete injury. Third is treatment planning. हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे करें? कोई इंजरी हुआ है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? Every injury has different protocol. If you have problem at your elbow joint, you have muscle sprain, you have ligament sprain, muscle strain, any kind of injury you are having, first of all, the mode of treatment is different for different athletes. So we will learn about this also in the sports medicine. Next is rehabilitation. What is rehabilitation? It is रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी. जैसे कि कोई एथलीट अगर इंजर होता है, तो उसको पेन मैनेजमेंट से लेकर उसकी टोटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पूरी, जब तक एक्टिव स्पोर्ट्स तक वो नहीं आता है, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन. मतलब दोबारा एथलीट को हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा, स्पोर्ट्स साइंस के द्वारा उस एथलीट को हम वापस नॉर्मल एक्टिव स्पोर्ट्स में कैसे लाएं. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. what kind of training, what kind of exercise we must perform for performance enhancement. This will also learn in this kind of this presentation. यानी हम इसमें वो भी जानेंगे कि किस तरह आप स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस या उनकी स्पोर्ट्स की जो एनर्जी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो एथलीट ज्यादा स्टेमिना एंड्योरेंस हो उनके पास, मसल इंजरी उनको कम हो. क्योंकि जितना अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी, जितना आपका होगा, उतना इंजरी एक्टिव स्पोर्ट्स में कम होता है. तो हमें ट्रेनिंग में बहुत फोकस करना पड़ता है. ठीक है. फिर है हमारा सेफ पार्टिसिपेशन. इट इज नॉट गेनिंग द मेडल, विनिंग द मेडल, बट मोस्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इंजरी. इसका ध्यान देना है. कब हमें एथलीट को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देना है, कब जाने देना है, वो भी हम इस स्लाइड में जानेंगे. चलिए नेक्स्ट. Now, sport physiotherapist. As I'm a sport physiotherapist,
तो उसमें हमारा जो मेन योगदान होता है वो होता है कि खिलाड़ियों को इंजरी को प्रिवेंट करके कोई प्रिवेंट करना फिजियोथेरेपिस्ट का मेन इंपॉर्टेंस होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ होती हैं। प्लस उनका मेन रोल तब होता है, ऐसे ट्रेनिंग में तो वो ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग आप कोचेस के द्वारा और भी फिजिकल ट्रेनर हैं उनके साथ वो हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट्स एट द एक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट। In that, a physiotherapist have to assess the injury, किस तरह का इंजरी है, कितना लेवल का इंजरी है, उसके बाद उसको असेस करना, फिर उसको किस तरह हम मूवमेंट को इम्प्रूव कर, पेन मैनेजमेंट करके, एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा के, डाइट न्यूट्रिशन करा के, कि हम एथलीट को वापस स्पोर्ट्स में कैसे लाए विथ सेफ्टी। बेसिकली दैट we how we will treat the injured athlete by exercise, electrotherapy, that is pain management. We have many modality in physiotherapy that we use for pain management, strength training and endurance training, and diet and nutrition. And before bringing to an active sports, it is the role of physiotherapist. Sport physiotherapy decide is the athlete is fit or unfit. It is the last decision of a sports physiotherapy. So sports physiotherapy is a very important part of sports management. Next. Now we'll come to know about common sports injury. जो मुख्य खेल में जो आपको चोट लगती है ना, वो हम जानेंगे। पहला होता है हमारा, जो हमारा होता है वो होता है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन बेसिकली आपके ज्वाइंट एरिया में होता है। एंकल ज्वाइंट हो गया आपका, ठीक है। स्प्रेन होता है, लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से जोड़ता है, उसकी इंजरी को हम कहते हैं स्प्रेन। एक होता है स्ट्रेन, जो मसल इंजरी को हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। मसल टीयर इज बेसिकली स्ट्रेन एंड लिगामेंट इंजरी इज बेसिकली स्प्रेन। उसकी भी लेवल होती है इंजरी की, उसको हमें एसेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है टेंडन इंजरी, ठीक है। फिर आता है हमारा बोन का फ्रैक्चर, और एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स होती है जिसमें हम लोग अपर लिम इस्तेमाल करते हैं, हैंड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थ्रो बॉल हुआ, ठीक है, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, है ना, बास्केटबॉल हुआ। इस सब में डिसलोकेशन बहुत कॉमन है शोल्डर ज्वाइंट का, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा स्पोर्ट्स इंजरी है जो कोचेस को पता होना चाहिए। दिस आर द स्पोर्ट्स इंजरी विच मस्ट द कोचेस शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर कॉमन स्पोर्ट्स इंजुरी, या नाउ here we'll now talk about what is acute injury and what is chronic injury, यानी तीव्र चोट और दीर्घकाल चोट। इसको असेस करना बहुत जरूरी है। एक्यूट इंजरी क्या होता है? जो आपको ऑन द स्पॉट इंजरी होती है स्पोर्ट्स में, जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अचानक गिर गया, बॉडी में आपकी जो ज्वाइंट एरिया वहां स्वेलिंग हो गई, या कहीं वुंड हो गया, चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, ये हमारी होती है एक्यूट इंजरी। दैट इज बिफोर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के अंदर, या मैक्सिमम कभी कभी 48 आवर्स भी लेके चलते हैं हम लोग, उसको हम लोग एक्यूट इंजरी कहते हैं स्पोर्ट्स में। और कुछ इंजरी ऐसा होता है जो बहुत स्लोली स्लोली डेवलप करता है, जो कई समय के बाद आपको पता चलता है। कभी कभी क्या था, स्पोर्ट करते हैं, कोई चोट लगता है, पता चलता नहीं है, लेकिन बाद में आफ्टर 4-5 डेज आपको एक तरह का पेन फील होता है। दोनों का मैनेजमेंट अलग है, एक्यूट इंजरी का और क्रोनिक इंजरी का। द मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द इंजरी इज टोटली डिफरेंट। In this slide, you are seeing that in acute injury, there is sudden, there is a painful sensation, and there is immediate swelling. In chronic injury, it develops slowly. It is due to repetitive stress and long-term pain. इसमें क्या होता है बेसिकली, में क्या कभी कभी हमारी मसल होती है,
जैसे कि कोई, जैसे आप वी कैन टेक एग्जांपल, इफ ऑल ऑफ यू वॉच क्रिकेट, है ना, तो क्रिकेट में क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट्स में होता है, व्हाट हैपेंस दैट प्लेयर हैज सम नॉर्मल पेन, ठीक है, तो दैट प्लेयर प्लेज दैट गेम, वो अपना खेल खेल लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी मैनेजमेंट होती है। कुछ दर्द ऐसा होता है जो लाइक देखिए डोम्स होते खाता है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जस्ट कम आफ्टर 48 आवर्स, 24 टू 48 आवर्स में ये प्रॉब्लम होता है डोम्स का, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो इस तरह को कहते हैं क्रोनिक इंजरी, जो हमें कोचेस को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। A very important chapter, very important topic, causes of sports injury, खेल चोटों के कारण। स्पोर्ट्स इंजरी आखिर होती क्या है? स्लाइड पे आने के पहले हम आपको ऐसे समझाना चाहते हैं, इंजरी होती क्यों है? या तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, या आपका ध्यान नहीं है, या तो आपके पास वो किट नहीं है, जो स्पोर्ट्स का जो सेफ्टी किट होता है वो आपके पास नहीं है, या आपने कर दिया, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत लोग सुनते हैं, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, एक बहुत बड़ा कोटेशन है जो बहुत ही डेंजरस है। पेन इज द सिग्नल दैट इंजरी इज गोइंग टू अकर। तो ओवर ट्रेनिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस क्या होता है कोचेस में, व्हाट हैपन द कोचेस आर बेसिकली वर्किंग दैट हर या हिज स्पोर्ट्स एथलीट्स परफॉर्मेंस increases, so they go for overtraining, that if he or she does overtraining, the performance will be good in the sports. No, that's not correct. Basically overtraining leads to injury, leads to loss of energy, and this overtraining leads to sports injury in the active sports. Poor warm up, many people comes, they go and play badminton, they play cricket, they do not do any warm up. So warm up, if you are not having, then it leads to इंजुरी। जैसे कि आपको हम समझाना चाहते हैं कि हमारा बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उसको तैयार करना पड़ता है कि हम आपसे काम लेने वाले हैं। तो हमें काम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, शरीर को बताना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करते हैं तो मांसपेशी क्या होती है, तैयार होती है, और अब डायरेक्ट आते हैं, आपकी मसल रिलैक्स होती है, अचानक स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको इंजुरी होती है। बेसिकली व्हेन यू कम टू एक्टिव स्पोर्ट्स विदाउट वार्म अप, द मसल्स आर नॉट ट्रेन्ड। So warm up is very important to increase the blood circulation in the muscle fibers, so that muscle perform the activity which a particular sports want. If you do not do perform poor warm up, then that leads to injury. Third is the wrong technique. When you play a sports, a coach must focus on proper biomechanics of a sports, how to play badminton. In this special child, you have to be very much take care of this. In normal sports focus होता है, there is focus, but in this it is a very, what you call, एक अच्छी परीक्षा होती है एक अच्छी कोच की। इट इज अ गुड टेस्टिंग ऑफ अ कोच when he prevent the injury of the special child, because they are very important part of our team. तो रॉन्ग टेक्निक से भी आपको, गलत आपकी जो तरीका है खेलने का, उससे भी आपको इंजुरी हो सकती है। चौथा है अनसेफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट आपका कहीं टूट गया है, जैसे क्रिकेट में होता है, आपने एल्बो पहना है, एल्बो हुआ है तो चोट लग सकता है, आपकी ग्लव सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल में जैसे व्हील चेयर वाले होते हैं, उनका जरा मूवमेंट रिस्ट पे और एल्बो पे जरा ध्यान देना होता है, तो उसमें कुछ सपोर्टिव पहनना पड़ता है उन लोग को, है ना, वो भी बहुत सेफ होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, है ना। तो equipment should be very much safe to prevent sports injury. Next is muscle weakness. As I have told you, if your muscle is weak, you cannot perform your any sports activity. It will lead to injury
So muscle weakness have to be prevented by proper strengthening exercise and diet. मांसपेशियों की कमजोरी जो बहुत ही जरूरी है हर कोचेस को देखना। अगर मांसपेशी आपकी कमजोर रहेगी तो मांसपेशी जो स्पोर्ट्स जब वो खेल में खिलाड़ी उतरेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो हमारा बॉडी का जो स्पोर्ट्स का जो बायो मैकेनिक्स होता है वो बोन मसल लिगामेंट टेंडन पे काम करता है, और मसल आपका मेन स्ट्रेंथ होता है। मसल से ही आप स्पोर्ट्स खेलते हैं। मसल वीक है तो आप जो भी स्पोर्ट्स होगा वो अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे, और आपका मसल का जो फाइबर होता है वो टूट सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। लिगामेंट दैट इज थकान। फटाइक क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, स्पोर्ट्स में एथलीट उतरते हैं तो थके हुए होते हैं, है ना, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस Yes. चाहिए होता है, उनको रेस्ट टाइम देना होता है। ठीक है, इफ एथलीट इज देयर, if he is feeling fatigue, if he is feeling a weakness, he is feeling that loss of energy, it is the importance of coaches to not allow this athlete to active sports. First, it might be dehydration or something due to some physical problem also, that you have to assess. If a fatigue athlete performs sports activity, 100% there would be a chance of injury. So you must take care the athlete is active in a supervision. Like in this case, in which you are the coach's special child, the lack of supervision can lead to disaster. अगर आपका प्रशिक्षक की अगर ध्यान भटका, कहते हैं ना, जहां ध्यान भटका वहां सब कुछ अटका, तो इसमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अपने एथलीट के ऊपर। कोई भी स्पोर्ट्स में अगर एथलीट आपका परफॉर्म करता है तो आपको 100% ध्यान कोचेस का एथलीट के ऊपर होना चाहिए। When your athlete participate in any sports event, it is the importance, it is the work, it is the function of a coach to see that his or her athlete perform best, should supervise him or her so that prevention of any sports injury. ये सब कोचेस को बहुत ध्यान देना होता है। If you will take care of this all points, you will prevent your athlete from sports injury. अगर आप इन सब बातों पे ध्यान देते हैं, जो पॉइंट्स आपको स्लाइड पे दिया गया है, तो आप अपने एथलीट की इंजरी को बचा सकते हैं, अपनी एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और you will very close to the medal. Okay, next slide. Now the risk factor. अब हम यहाँ जानेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर होती है इंजरी में, यानी स्पोर्ट्स इंजरी किनको किनको या किस चीज में हो सकता है। पहला होता है एज। What are risk factors which can injury? That is age factor. Like if you keep a 20-year-old athlete with a 45-year-old athlete, you cannot compete a 11-year athlete with 28-year athletes. So the different age has different sports activity, different rule, different marking. So if you will more active sports, if you do more active sports to some 11-year student or 12-year athlete, any kind of athlete, if you give them that target that is given to 28 years athlete, it can lead to injury. Is most important factor. Plus एज में और क्या होता है कि जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है आपकी इंजुरी की ज्यादा होती है, जैसे जैसे यंग एज होता है उतनी इंजुरी कम हो। ठीक है, तो एज इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंजुरी। नेक्स्ट है फिटनेस लेवल। व्हाट इज फिटनेस लेवल?
It is your performance, how you perform. Like if you ask to run 100 meter, you run in how many seconds? Some will take 12 seconds, some will take 14 seconds, some will take 15 seconds, some will take 10 seconds, some will take 10.5 seconds. So different people had different fitness level. तो फिटनेस लेवल पे भी हमारा इंजरी डिपेंड करता है. अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द injury. So fitness level is the second factor, is factor for the injury. Third is previous injury, purani chot. If an athlete has got some injury in the past and he is returning back to active sports, that must be taken into consideration by the coaches to prevent further injury. Previous injury, पुरानी चोट क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो पावर होती है मसल या जो हमारी बॉडी की जो फंक्शन होती है वो थोड़ी वीक होती है, तो उसमें हमें स्पोर्ट इंजरी होने का चांस हो. नेक्स्ट इज हमारा पुअर न्यूट्रिशन. लाइक you cannot drive a car, you cannot drive a bike of a petrol. A good petrol, good condition car or bike. Like that, a good nutrition give strength to the athlete and increase their performance in the active sports and also prevent the injury. अगर आपका जो एथलीट है उसको आप पोषण अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं, अगर उसको कमजोर पोषण दे रहे हैं, तो कमजोर पोषण के कारण अगर आप उनको प्रोटीन, जो एक प्रोटीन होता है नॉर्मल एथलीट्स का, एक प्रोटीन होता है नॉर्मल इंडिविजुअल का, द बोथ इनटेक इज डिफरेंट. यू कैन नॉट कंपेयर एथलीट न्यूट्रिशन विद नॉर्मल पीपल न्यूट्रिशन. तो एन एथलीट nutrition, so they must be provided with more protein items, carbohydrate for energy increasing. The more important part is the hydration, water, mineral water, all this kind of water you have to drink. You have to keep your body fit. You have hydration. Lack of water leads to muscle. So prevent injury, but poor nutrition will lead to injury activity. Next level. Yeah, okay. Am I audible? Yes. Okay. Okay. Now we'll come to know about warm-up. That is very much important in the activity of sports. Before going to sports activity, warm-up is very much important. First is general warm-up. Like you have to do small normal jogging, normal, not speed jogging. Okay, you test 10 to 15 minutes of normal jogging. After that, you have to do dynamic stretching. This stretching is very much important before any active sports. Okay, dynamic stretching is the stretching that occurs in the activity. Like you are doing some what you call stretching exercise in the movement. Okay, you take a ball, just move your body like this, है ना? This all are a dynamic stretching. This is very much important before a sports performance. Third is sport specific warm-up. Like if you are playing football, for football, your focus should be on your lower limb muscles, your stamina, your cardiovascular system. For that, you have to work, do a good jogging. You have to good stretching of hams, quadriceps, tibialis anterior, all this lower limb muscles, back muscle. You have to
make proper stretching and proper strengthening of that part of the muscle. Like you're playing now badminton. In badminton, you have to focus on your upper limb specific exercise. Like you can do rubber. We have a static rubber. You have TheraBands. You can do with that. यानी कि हम लोग जनरल वार्म अप करें. डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो बेसिकली मूवमेंट में जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, दैट वी कैन शेयर इन द वीडियो. एक वीडियो आपको सर प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप समझ जाएंगे डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती क्या है. और फिर रहता स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप, यानी हर स्पोर्ट्स की अलग वार्म अप होती है. ठीक है. And then next is, and that's neuromuscular activation. As the name suggests, neuro means nerve, muscles means मांसपेशी. नस और मांसपेशियों को एक्टिवेशन करना होता है. इसमें आपकी कई सारे होती हैं, जैसे कि आप कुछ आप जैसे एक होता है रन स्टॉप एक एक्टिविटी होती है. जैसे कि एथलीट्स को अचानक आप बोलेंगे रन देन स्टॉप, रन 100 मीटर स्टॉप, रन 100 मीटर स्टॉप्स, रन 100 मीटर स्टॉप्स. These are called neuromuscular activation that improve your performance in the coming sports. Okay, next. Now the cool down. After training, warm up, sports activity performed, and after that cool down. If some people what they do the sports and they go and just go and take have a walk, have a chat. They start chatting with the other athletes. Okay, they start eating something, है ना. तो क्या होता है, कुछ लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी खत्म होने के बाद बात करना शुरू कर देते हैं, या बैठ के कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं. नहीं, वो ध्यान नहीं, उस पर फोकस हमको नहीं करना होगा, हमें प्रिवेंट करना होगा. हमें कूल डाउन पे फोकस करना है. After sports performance, it is the importance of an athlete to perform. It is very important part of a coaches. Coaches must take their athletes to proper cool down or encourage the athletes to do proper cool down exercise. That includes, and what is the benefit of cool down? The normal heart rate. It reduces soreness. It improves recovery. It relaxes the muscle. In cool down, we use a static stretching. You have studied dynamic stretching. Dynamic stretching is basically in the active sports. Before performing any active sports, you do dynamic stretching, and when you are cooling down, then you can go for static stretching. Like you can just hold your hand. Okay, हल्का सा move करेंगे, हल्का सा hold करेंगे, stretch. Static stretch you have to hold for 5 to 10 seconds each position. That is called static stretching. So this relaxes the muscle, improves the recovery. So cool down is as important as warm up. Next slide, please. Now this is stretching. Yeah, जो मैं बोल रहा था वो अगले में आ गया. See, before activity it is dynamic stretching, and after activity is a static stretching. Dynamic stretching is the stretching during movement activity. Okay, and static stretching you have to hold for 5 to 10 seconds each position. That is called static stretching. What the stretching does, it improves your flexibility. आपकी शरीर की लचीलापन को बढ़ाती है, आपकी परफॉर्मेंस को improve करती है, आपकी कड़ापन को दूर करती है. It reduces the stiffness. It improves the flexibility. So stretching is the very important aspect of a sports training program that every coaches must know and work on this. Next slide. Muscle strength and balance, as I say. Like एक बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग में अच्छा सीमेंट, अच्छा रॉड नहीं पड़ा है, तो हल्का सा भूकंप आने पे बिल्डिंग गिर जाती है ना. वैसी हमारा शरीर है. शरीर हमारा क्या है, मांसपेशियों पे टिका हुआ है. बोन किस पे है, मांसपेशियों पे टिका है. लाइक as you have for a good building, you should have a strong cement, strong rod, iron rod,
as that same body muscle should be have proper strength so that we can prevent injury. So proper specific muscle training program is there of different muscles. ठीक है, जैसे कि बाइसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, टिबियालिस एंटीरियर, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, बैक एक्सटेंसर, है ना, बैक फ्लेक्सर, फ्रंट फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर, स्पाइनल फ्लेक्सर्स, ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है. If your muscle strength is good, your body is balanced. This is I can just give understand like this. This is your body. एक होता है एंटीरियर एस्पेक्ट, एक होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ, और बीच में हमारा स्पाइन होता है. तो ये जो मसल होती है और पीछे की मसल होती है, अगर एक मसल स्ट्रांग हो गया और दूसरा मसल वीक हो गया, तो ये मसल्स क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा. अगर ये मसल आपका स्ट्रांग है, ठीक है, अगर ये मसल आपका वीक है और ये मसल आपका स्ट्रांग है, तो आपका बॉडी पीछे डिसबैलेंस होगी, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो जब भी मसल स्ट्रेंथनिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स, इट मस्ट फोकस ऑन द होल मसल स्ट्रेंथ. ठीक है, whether any sports you play badminton, you play basketball, you play running, you perform anything, pole vault, or so in all these kind of, you have to do the muscles of all the muscles of the body, क्योंकि मांसपेशी हर बॉडी से लिंकअप है. अब एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके साथ पूरा बॉडी का मसल काम करता है. अब ये नहीं है कि हमको शोल्डर एक्टिविटी करना है, स्पोर्ट्स है तो हम नीचे का एक्सरसाइज ना करें, स्ट्रेनिंग ना करें, नहीं, हमें वी हैव टू ट्रेन आवर होल बॉडी, होल मसल्स एज अ वन इन एनी स्पोर्ट्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So the muscle strength and the balance. Balance depends on your muscle strength. The more the muscle strength, the good muscle strength will prevent the less injury. Now next slide. We can go to next slide, please. चलिए, तो इसको डिस्कस अभी और कर लेते हैं, तो स्लाइड अपना आगे नहीं बढ़ रहा है. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे हैं बिफोर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यू मस्ट फोकस ऑन व्हाट, होल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. ओके, ये सब लोग आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितनी भी कोचेस हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. कैन वी गिव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगले स्लाइड पे जाएंगे. लग रहा है शायद हैंग हो गया है. एम आई ऑडिबल टू ऑल? एनीवन कैन से? Yes, Yes, yes. sir. ओके ओके, चलो. तो स्लाइड आगे नहीं बढ़ता है तो मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ, है ना. तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितनी भी इंजरी होती है, एनी इंजरी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 95% इज ड्यू टू द मसल. हाइड्रेशन भी होती है तो मसल वीक होता है ना. देखिएगा, आप लोग कभी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते होंगे, कोचेस कभी खेले होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते होंगे, तो आपकी मसल्स क्रैम्प्स होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट ग्लूकोज लेते हैं या हम लोग मिनरल वाटर लेते हैं अपने को ये करने के लिए. ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना होता है. मसल स्ट्रेंथ इज द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो मसल स्ट्रेंथिंग पे हमें बहुत फोकस करना होता है कोचेस को. ठीक है, और इसी में क्या होता है कि आपका जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं, है ना, जैसे मैं कह रहा था आपको, जैसे एनी स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग, लाइक यू आर प्लेइंग फुटबॉल, you are playing cricket, you are playing badminton, you are having a shot put, you are having any sports like pole vault,
आप कोई भी एक्टिविटी करें, you must focus on full strength training. That muscle strength training should be have a good protocol. एक दिन पूरी बॉडी को हमें फोकस करना पड़ता है। जैसे कभी हमें एप्स के साथ एक एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज अगर इसका करेंगे तो हमें बैक साइड की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ट्राइसेप्स की भी स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। अगर हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो हमें क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है। बोथ जो मसल्स होती हैं उस पर हमें मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, हाँ आगे चलें, जो मैं स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। आगे स्लाइड बढ़ सकता है। हाँ चलिए, ओके चलिए, एट लास्ट आगे बढ़ा स्लाइड। चलिए, अब हम बात करेंगे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी इन इंक्लूसिव स्पोर्ट्स। ओके, नाउ विल कमिंग हियर टू डिसेबिलिटी। जो हमारे बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनमें क्या क्या इंजरी होती है, हम उस पर ध्यान देंगे। नाउ वी विल फोकस, एज यू ऑल आर द कोचेस ऑफ स्पेशली चैलेंज्ड और डिसेबल एथलीट्स। ठीक है, तो यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ इंजुरी। Basically, the basic fundamental is same which I have taught to you in past slide. जो भी मैंने आपको आखिरी जो स्लाइड में पढ़ाया है, जो अब तक पढ़ाया था, वो सेम चीज इसमें भी हम लोग गवर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। इनमें इंजुरी का चांस बहुत ज्यादा है। अगर कोचेस ध्यान न दें तो इंजुरी हो सकती है और बहुत ज्यादा इंजुरी हो सकती है। सो इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन कोचेस टू लुक आफ्टर दैट each athlete, each disabled sports athlete performing should be have a good focus. So these are the injury like shoulder injury, knee injury, ankles, low muscle strain, and overuse injury. All are injuries which are very much common in athletes with disability, sport, and level of participation. Next slide. वो यहाँ पे मस्ती करने हैं बैक से। Change the slide. Rahul ji. कि जितनी भी होती है स्पोर्ट्स की, आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, शोल्डर इंजुरी, नी इंजुरी, एंकल स्प्रेन, लोअर बैक पेन, मसल स्ट्रेन, ओवर यूज इंजुरी, इसका मेन है मसल 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 मसल। इफ मसल्स प्लस योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस योर न्यूट्रिशन, what does muscle want? Muscle want proper nutrition or training. If you have a good muscle strength, if you have proper nutrition, you will be prevented from all these kind of injuries: shoulder injury, knee injury, ankle sprain, lower back pain, muscle strain and overuse injury. नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी लेना है, आंसर इसके बाद होगा। हैंग हो रहा है लग रहा है। Yes, yes. This is next slide. Next slide आ गया. हाँ यस सर, यस सर, यस सर। Prevention in parasport. Now how to sports event, जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो पैरा ओलंपिक्स होता है, इसमें डिसेबल होते हैं, स्पेशल चैलेंज होते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो उनका इंजरी प्रिवेंशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोचेस का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कोचेस टू प्रिवेंट इंजुरी इन द पैरा एथलीट्स। नाउ हाउ यू कैन प्रिवेंट इंजुरी इन अ पैरा स्पोर्ट्स? फर्स्ट, परफॉर्म प्रॉपर क्लासिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग। मतलब यू हैव टू, जो एक्टिविटी, एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स द पैरा to perform, you have to focus more on that training. आप बाकी तो पार्ट कीजिए, छोड़ना नहीं है, लेकिन यू हैव टू हैव परफॉर्म प्रॉपर क्लासिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग। अगर
एथलीट बैडमिंटन प्लेयर है, आपने क्या किया, आपने उसको प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग करवा दिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको शोल्डर पे काम नहीं किया, उसके बाइसेप्स पे काम नहीं किया, उसके ट्राइसेप्स पे आपने काम नहीं किया, उसके डेल्टॉइड पे आपने काम नहीं किया, उसके ट्रेपेजियस पे आपने काम नहीं किया, तो इंजरी होना है बैडमिंटन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऑल स्ट्रेंथ करते हैं करें, लेकिन मेन फोकस शुड बी ऑन द स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग मसल. So perform proper classification based training. Second is use appropriate assistive device as wheelchair sports. उसमें क्या होता है, एथलीट्स को आपको व्हील चेयर को मूव करना पड़ता है, तो उसमें मूवमेंट किसमें होती है, हमारी रिस्ट और एल्बो में. तो प्रॉपर हमें रिस्ट और एल्बो सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है. फिर उसके बाद नी सपोर्ट होना जरूरी है कुछ एथलीट्स में, है ना. रनिंग में हो गया, आपको नी सपोर्ट चाहिए, एल्बो सपोर्ट चाहिए, और ये भी अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस होनी चाहिए. द डिवाइस शुड बी very much appropriate. It is the responsibility of coaches before giving any assisting device to an athlete. He must check the device बट इसे condition अप्लाई क्यों करते हैं, working वो habit. एडमिशन नहीं लेना होता तो? And third is maintain correct posture. As I have told you, posture if correct, if you have more forward movement posture, that will lead to injury. If you have more of a back posture, it is leads to injury. So you have to maintain a correct posture. है? Monitor fatigue regularly. If an athlete is performing, उसको उनको थकावट ये हो रहा है, स्पेशल करना है, उसको तो करो. थकावट हो रहा है, इसमें उसका आपको कोचेस को बहुत ध्यान देना होता है. अननेसेसरी फिर उसके बाद होता है इंस्पेक्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिफोर यूज. रीजन स्पोर्ट्स होगा, हम भी इक्विपमेंट क्या कहते हो हैं गया, आपका फुटबॉल जो भी हो गया, हैमर हो गया, पोल वॉल्ट हो गया, वो सही है, सेफ है. बैडमिंटन तो सेफ है ना. या जो भी हम स्पोर्ट्स का यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट, दैट मस्ट बी inspected before any sports activity. And next and the last is following progressive training plans. Each athlete performing, you have to take into the consideration. Okay, now this has come to different para athletes. First is visual impairment, how to prevent it. Maintain a safe environment. It is the role of coaches to see that the area where the visual impairment para athlete is playing is what is called obstacle free. There may be no stone, no any what do you call stop point, yeah, any unwanted material in their place, to prevent this kind of injury. Plus you have to use verbal instruction. Your verbal instruction should be very precise for prevention of injury in the visual impairment. You have seen the blind cricket tournament. Have anybody seen? They have a ball which have a sound. They throw the ball, and with the sound, the player hits the ball. Okay, and there are some proper. There is one more proper athlete also who can see, who guide them where to play, where to run. Okay, so this is very much important that it should be safe environment and your verbal instructions should be good. Now, wheelchair athlete, as I have always told you, protect shoulder and wrist. Take wheelchair fitting. जो व्हील चेयर आप यूज कर रहे हैं, जो पैरा एथलीट जो व्हील चेयर यूज कर रहे हैं, उसकी ग्रीसिंग अच्छी होनी चाहिए. उसका जो व्हील है दैट मस्ट बी अप टू डेट. उसमें चेक जैसे कि इट मस्ट बी विथ फुल एयर. इसका बहुत ध्यान देना जरूरी है, तो हम व्हील चेयर एथलीट्स पे ये ध्यान दें. थर्ड इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. इसमें है गिव सिंपल इंस्ट्रक्शन, ensure close supervision. This is the most important part for intellectual disability, because they cannot understand the some very hectic or some kind of challenging instruction. So you have to give him simple instruction, and you have to, that athlete, para athlete of intellectual disability must be have a close supervision, very close supervision. You cannot leave that athlete on its own. And last is autistic child.
So you have to reduce sensory distraction. Where the autistic child is playing, you have to maintain silence. There should be no any unwanted sound. This you have to take into consideration, because autistic para-athlete is not able to perform in the distraction. Any आपका एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट, एनी आपका साउंड, जब वो ऑटिस्टिक का एथलीट जब परफॉर्म करे तो उसका एनवायरनमेंट पूरा खाली होना चाहिए। ठीक, इसका बहुत ध्यान देना होता है। मेंटेन अ प्रेडिक्टेबल रूटीन। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर रूटीन फॉर द ऑटिस्टिक पैरा एथलीट। नेक्स्ट स्लाइड। So now first aid in sports. तो इमीडिएट फर्स्ट एड रिड्यूसेस सीवियरिटी ऑफ इंजरीज एंड इंप्रूव रिकवरी। बेसिकली क्या होता है, किसी को एथलीट को इंजरी होती है तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। नहीं, वहां हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है। whenever there is some athlete get injured, do not feel nervous, do not become nervous, always be calm, ensure safety, assess the injury, stop bleeding if present, call medical assistant when necessary। ये आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड। वो आया नहीं। Now RICE, this you must understand, RICE protocol: rest, ice, compression, elevation। रेस्ट मतलब क्या लोग करते हैं ना, कहीं आप जाते हैं, इफ यू गो टू एनी एथलीट, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन गेट इंजर्ड, द पीपल व्हाट दे डज, मूव करो, मूव करो, इसको मूव करो, इसको मूव करो, इसको मूव करो, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, मूव करो। ये आपको ध्यान देना है। मूवमेंट लीड्स टू मोर इंजुरी, मोर इन्फ्लेमेशन। So you have to rest. Then you have to apply ice for 15 to 20 minutes. How to apply ice? If you ice, cover it with a cotton, yeah, with some cloth. Don't give ice directly on the people. Okay, directly on the skin. It can lead to your cold burn. And then is a compression. You have to tie compression bandage, and you have to elevate away. It should be in the level away from the, in the level above the heart. Okay. Now खेलों में प्राथमिकता उपचार, फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स। इमीडिएट फर्स्ट एड रिड्यूसेस सीवियरिटी ऑफ इंजुरीज एंड इंप्रूव रिकवरी। अच्छा, पुराने स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। कैन यू गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड? स्लाइड शिफ्ट हो गई है। हाँ हाँ, तो राइस प्रोटोकॉल, कंप्रेशन, you have to use elastic bandage, elevation, keep the injured part above heart level, जो मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट स्लाइड। When should an athlete stop playing? Now it is very important aspect of a coach's life to know when I should bring my athlete out of the active sports। कब हम अपने एथलीट को, इंजरी हुआ है उसको, एक्टिव स्पोर्ट से हम वापस अपने एरेना में लाके उसको रेस्ट पे लाएं। तो उसमें ध्यान देना है। पहला है सीवियर पेन। किसी एथलीट को अगर सीवियर पेन होती है, पैरा एथलीट हैविंग सीवियर पेन, हल्का तीव्र दर्द होता है, तो ही शुड बी ब्रिंग टू द अवे फ्रॉम द एक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट। हेवी ब्लीडिंग, ब्रिंग बैक टू फ्रॉम द एक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, ब्रिंग हिम बैक टू द फ्रॉम द एक्टिव। ये सब में हमें करना क्या है कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है एथलीट्स में, तो उनको स्पोर्ट्स में आगे नहीं परफॉर्म करना है। आपको उसे चेंज कर दीजिए या उस एथलीट्स को वहां से हटा लीजिए, नहीं तो बाद में इंजुरी और ज्यादा बढ़ सकता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज्वाइंट डिकुलेशन, हेड इंजुरी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड यू फटाफट यू जस्ट टेक अ मेडिकल हेल्प एज सुन एज possible. It is the duty of a coach to get medical attention as soon as possible for this para athlete which has got injured. Okay, and ask them to and stop playing when you see this kind of symptom in that athlete। आपको वो एथलीट में अगर ये सब चीज दिखे तो वहीं पे उसको खेलना बंद कर दीजिए और प्रॉपर डॉक्टर कंसल्ट को कॉल करें। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, जो खेल पुनर्वास, जैसे कि हम लोग कई ट्रेनिंग देते हैं, हमारे एम्स में भी आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी वाले, उनका रिहैबिलिटेशन होता है, एडमिट होते हैं, स्ट्रेन ट्रेनिंग देते हैं, पेन मैनेजमेंट देते हैं, पहले उनका पेन मैनेजमेंट करते हैं। इफ देयर इज पेन इन दैट वी डू नॉट परफॉर्म एनी मूवमेंट। जब पेन होता है
पेन सेज नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं करना होता, तो पहले हम पेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं जो हमारे फिजियोथेरेपिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। फिर हम मोबिलिटी रिस्टोरेशन के लिए हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराते हैं। विल द स्पोर्ट्स विच द पैरा एथलीट विल प्ले, that play in some 50% less energy, not that energy of active sports, will have sports specific training program for that athlete. That this depends on the different para athlete of different sports. Each para athletes of different sports will have different sports specific training program. Then only physiotherapist will suggest the athlete is fit or unfit, and before going to active sports, he must play normal practice sports before going to some competitive sports activity. Next slide, please. Now return to play guidelines. अब जो खिलाड़ी हमारा इंजर्ड हुआ है, फिर से दोबारा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा पैरा एथलीट तैयार है दोबारा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या कंडीशन हमें देखना होता है? व्हाट आर द कंडीशन विच एंड कोचेस शुड नो बिफोर आस्किंग हर और हिज एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट, लाइक पेन फ्री मूवमेंट, मूवमेंट में कोई इसको दर्द नहीं है, फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरी जो बॉडी की रेंज ऑफ मोशन होती है जॉइंट की वो पूरी होनी चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल स्ट्रेंथ, द एथलीट शुड हैव अ नॉर्मल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ उसका था उस पर वापस आ चुका है, मेडिकल क्लियरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब मेडिकल क्लियरेंस फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट विच इंक्लूड ऑफ अ स्पोर्ट्स मेडिसिन MBBS डॉक्टर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, एंड प्लस फिजिकल ट्रेनिंग कोच, तीनों का मिलके एक मेडिकल क्लियरेंस मिलेगा आपको। देन ओनली सी द मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑफ एन एथलीट, बिकॉज एथलीट आर वेरी एक्टिव, दे से अरे हम तो ठीक हो गए, हमको स्पोर्ट्स में उतार दो, है ना। बट पैरा एथलीट्स में भी कुछ लोग होते हैं बहुत जोश में रहते हैं कि आई हैव टू परफॉर्म, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द कोचेस बिफोर गिविंग देम any participant to normal sports, active sports event, you should have a medical clearance. Then psychological readiness. If an athlete coming from any injury, they are very much depressed, they are very much in the stress, I will able to perform or not, like the past. So it is the role of a coach to motivate his or her athlete that no, you are okay, now perform your sports with great power, great energy. So this is a very important part for psychological readiness. And last come the U, coach approval. Okay, the next slide, please. Now, role of nutrition, very important. मैंने पहले ही बता दिया था आपको रोल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन फॉर मसल, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड, ये मैं डिस्कस कर लिया पहले ही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइकोलॉजिकल रिकवरी, मानसिक पुनर्निवास इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एनकरेज एथलीट, बिल्ड कॉन्फिडेंस, सेट रियलिस्टिक गोल। मतलब गोल ये मत बनाइए अरे तुम जाके मेडल ले लोगे वो कर दोगे, नहीं, रियलिस्टिक गोल, उसके कंडीशन के हिसाब से एक आपको गोल ट्रेन करना है। यू हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल विच कैन बी अचीवेबल, नॉट unachievable goal you have to give to the para athletes. If you do this, again it will lead to injury. Reduce fear of re-injury. Many athletes after injury coming into sports, active sports, they have a fear in them. Or yeah, whether I will get again my injury, कैन आई गेट सेम इंजुरी फ्रॉम दैट बॉल, मुझे उससे दोबारा लग सकता है, अरे मैं तो पहले ऐसे गिरी थी, कहीं ऐसे ना गिर जाऊं मैं, इसका बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, तो दिस आर ऑल लेवल्स से रिड्यूस फियर ऑफ री इंजुरी, यू हैव टू मोटिवेट इट एंड प्रमोट पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज motivates, and para athletes needs more motivation. Okay, next slide.
Now, role of the coaches in the injury prevention or an inclusive coach plays a vital role in preventing sports injury. हम फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत ध्यान देना कोचेस का काम है, और हो जाता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट वी आर ट्रेन फॉर दैट, बट इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कोचेस टू सी कि योर एथलीट do not get any sports injury. If you are giving proper nutrition, proper training, proper muscle training, and proper equipment, everything, then there will be less chance of injury. ठीक है? These are the role of coaches. First, plan safe training session. अच्छी ट्रेनिंग, सेफ ट्रेनिंग सेशन बनाइए आप. नेक्स्ट, टीच करेक्ट टेक्निक्स. मॉनिटर एथलीट फैटिग. मॉनिटर, ओके, मॉनिटर करना है आपका एथलीट थक रहा है. क्या होता है ट्रेनिंग में, एथलीट जब थकता है तो आप उसको और मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं करो करो, कुछ नहीं हुआ तुमको, चलो चलो, ओके ओके, डन डन डन. नहीं करना है, ये कोच को ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा मोटिवेट करते करते बंदा थकावट में है, तो एथलीट इज इन फेटिग एंड यू एनकरेजिंग हिम टू, तो एथलीट परफॉर्म करेगा, लेकिन दैट लीड्स टू योर इंजुरी ऑल्सो. तो दिस यू हैव टू डू. मोटिवेशन करो, पॉजिटिव मोटिवेशन करो, आंख खोल के मोटिवेशन करो कि एथलीट हमारा कैसा है. ठीक है? Encourage hydration and nutrition, as I have told you previously also. Ensure proper warm up and cool down, and so safe sports practice. यानी अच्छा स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है? इसका बहुत ध्यान देना है आप लोग को. ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड. Now, sports safety guidelines. This you must know. What are the sports safety guidelines? Inspect the playing field before practice. आपको ध्यान देना है पे खेल रहे हैं वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना हो, उसका ध्यान देना है. दूसरा है यूज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ठीक है? ऐसा इक्विपमेंट मत लीजिए जैसे कि वजन है 2.5 किलो का. कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं 2.5 किलो, 5 किलो, 7 किलो. अगर 5 किलो वाले कंपटीशन में आप 7 दे देंगे तो इंजुरी होना है. तो यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ठीक है? वियर प्रोटेक्टिव गियर, फॉलो द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट, स्टॉप एक्टिविटी इंजुरी इज सस्पेक्टेड, कीप फर्स्ट एड किट रेडी अवेलेबल, एंड डेवलप अ इमरजेंसी एक्शन प्लान. नेक्स्ट स्लाइड. This is a case of people. I will ask. This is I have to ask. Okay, a 16-year-old para athlete complains of ankle pain after a running session. What could be the possible injury? It might be ankle sprain. What immediate first aid should be provided? Anyone? Rice. Very good. Rice. Very good. Should the athlete continue the training? Anyone? Should the No, athlete sir. continue the training? No, sir. Oh, that's good. No, Very good. no, sir. No, not continue. Okay, nice. Very good. When should referral to a physiotherapist or doctor be made? When you will ask that athlete to come to me? सर हाँ, जब हाँ, दर्द बहुत ज्यादा हो और स्वेलिंग हो जाए तब. very nice. Very nice. You are now trained coaches. Okay, now you're trained coaches. Now you have role. तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है, आपको 3 फॉर्मूला देना चाहते हैं. इसको फॉलो कीजिएगा, आपकी स्पोर्ट्स इंजुरी कभी एथलीट्स की. पहला, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इंक्लूड एवरीथिंग, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मसल्स ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ऑल सब होता है. तो प्रोफेशनल प्रॉपर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज द मोटिवेशन. These 3 parts is very much important for a performance of a para athletes. Okay. Next slide is there. Next slide. Now, the what takeaway you have taken from today? First, prevention is better than treatment. Warm up and cool down are essential. Early identification prevents complication. Rehabilitation should be gradual. है ना? Rehabilitation ये नहीं है कि बंदे को चोट लग गई, अरे वाह हमको हल्का पेन में आराम हो गया है, अरे अब हम खेल कूद लेंगे. नहीं, नो नो नो.
नहीं करना है, ऐसा जोश में नहीं आना है, जोश में होश नहीं खोना है। यू हैव टू फॉर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल डिजाइन बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू हैव टू फॉलो दैट। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एथलीट्स को पेन में आराम हो जाता है, तो एथलीट बोलता है नाउ विल प्ले। नहीं नहीं नहीं, ये आपका रिलीफ हुआ है पेन से, मसल अभी भी आपकी वीक है, योर मसल इज स्टिल वीक। सो what proper protocol a physiotherapist has made in rehabilitation, it is 3 months, 4 months, 6 months, you have to follow that. Like example, Jasprit Bumrah injured hai, he is not playing cricket, he is in rehabilitation, he is not selected for coming tour. Why? Because you have to prevent the injury, further injury. ये बहुत कॉमन है। ऐसे ही आपके स्पोर्ट्स में भी, if an athlete is injured, he should go under proper rehabilitation program. अब जैसे जसप्रीत बुमराह जी हैं, वो अभी आएंगे तो एक्टिव स्पोर्ट्स पे नहीं उतरेंगे, पहले वो लोकल स्पोर्ट्स खेलेंगे, रणजी खेलेंगे, वो खेलेंगे, तब फिट होके इंडियन टीम में वापस करेंगे। ठीक है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स ओनली आफ्टर फुल रिकवरी, responsible for athlete safety and inclusive safer sports environment। फॉलो कीजिए और एथलीट को मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड। अच्छा टाइम का पता चला, 1 घंटा हो गया है ना, लेक्चर 1 घंटे से हो गया और आप लोग इतना ध्यान से सुने। और ये जो है ना, क्या है, जाते जाते बोलना Yes, चाहता हूँ, ये जो है ना, इंजुरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक पैरा एथलीट्स की परफॉर्मेंस के लिए। ये कोचेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका कंटिन्यू करेंगे, देयर इज वन वीडियो, सो राहुल जी कैन यू जस्ट हाँ, स्टार्ट वीडियो देख लेते हैं, फिर आपका कंटिन्यू करें। खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज हम कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेवल ए फाउंडेशन के 15वें दिन की बहुमूल्य सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का हमारा फोकस बहुत ही अहम विषय पर है, समावेशी खेल प्रशिक्षकों के लिए खेल चोटों की रोकथाम, उनका पुनर्वास और स्पोर्ट्स मेडिसिन। अच्छी बात यह है कि ये पूरी सामग्री द्विभाषी संदर्भ में है, जिससे हर एक बात को समझना काफी आसान हो जाता है। देखिए, खेल के मैदान पर ऊर्जा और जोश तो होता ही है, लेकिन सुरक्षा हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और यहीं से एक सतर्क और शानदार प्रशिक्षक की असली भूमिका शुरू होती है। अब आपको बता दूं कि आज हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो एक बेहद प्रामाणिक स्रोत से आ रही है। ये सामग्री एम्स पटना के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह द्वारा तैयार की गई है, जिनका इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, डॉक्टर सिंह के पास चिकित्सा की विशेषज्ञता जरूर है, लेकिन उस विशेषज्ञता को असली दुनिया में सीधे मैदान पर लागू करने वाला असली नायक कौन है? वो नायक है एक सामुदायिक प्रशिक्षक जो खिलाड़ियों के साथ हर पल खड़ा होता है। ठीक है, चलिए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के परिचय की, सामान्य खेल चोटों की रोकथाम की, समावेशी कोचिंग में सुरक्षा की, फिर हम देखेंगे प्राथमिक उपचार और चोट प्रबंधन, और अंत में पुनर्वास और खेल में सुरक्षित वापसी। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन का परिचय। अक्सर जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब बस टूटी हुई हड्डियों या मोच का इलाज करना है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये केवल चोटों को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसका असली मकसद है चोटों को होने से रोकना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये खिलाड़ियों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें उनके बेस्ट परफॉर्मेंस तक ले जाने का विज्ञान है। और इसी से जुड़ी है हमारी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं। जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है और जब वो वापस पूरी ताकत के साथ मैदान पर लौटता है, तो इन दोनों के बीच का जो सफर है वो फिजियोथेरेपी तय करती है। ये सिर्फ दर्द दूर करने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर के मूवमेंट और खोई हुई ताकत को पूरी तरह से वापस लाती है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां हम बात करेंगे सामान्य खेल चोटों की रोकथाम के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आखिर चोटें लगती क्यों हैं। अगर आप इन कारणों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इनमें से ज्यादातर चीजें सीधे तौर पर एक प्रशिक्षक के नियंत्रण में होती हैं। सही वार्म अप ना होना, गलत तकनीक या फिर खराब उपकरण, ये ऐसे खतरे हैं जिन्हें आप आसानी से रोक सकते हैं। यहाँ तक कि नींद की कमी जैसे कारणों पर भी नजर रखी जा सकती है। मतलब ज्यादातर चोटें किसी एक्सीडेंट का नहीं बल्कि खराब तैयारी का नतीजा होती हैं। अब तैयारी की बात हो ही रही है तो वार्म अप और कूल डाउन को हम कैसे भूल सकते हैं। खेल से पहले की जाने वाली डायनामिक स्ट्रेचिंग शरीर में खून का बहाव बढ़ाती है और मांसपेशियों को एक्टिव करती है। ये सचमुच खिलाड़ी के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। और खेल के बाद का कूल डाउन, वो शरीर की रिकवरी को फास्ट करता है और उस जकड़न को दूर करता है। ये बिल्कुल बुनियादी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार है। यहाँ हम अपनी गति को थोड़ा धीमा करेंगे, क्योंकि अब हम आते हैं हमारे सबसे खास भाग पर, समावेशी कोचिंग में सुरक्षा। देखिए, पैरा खेलों में हर खिलाड़ी की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। एक समावेशी कोच होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि चोटों का प्रकार खिलाड़ी की दिव्यांगता और खेल पर निर्भर करता है। इसलिए क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के आधार पर ट्रेनिंग देना कोई चॉइस नहीं है, ये एक अनिवार्यता है। आपको व्हीलचेयर या अन्य उपकरणों की बारीकी से जांच करनी होती है और सही पोस्चर का खास ध्यान रखना होता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि समावेशी खेलों में चोट से बचाव का मतलब हमेशा टेपिंग या बैंडेज लगाना नहीं होता। कई बार ये सिर्फ आपके संवाद और वातावरण के प्रबंधन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को एकदम स्पष्ट बोलकर निर्देश देना या ऑटिज्म वाले खिलाड़ियों के लिए शोर शराबे और संवेदी व्यवधानों को कम करना। ये साबित करता है कि एक बेहतरीन कोच सिर्फ शारीरिक तकनीकों का मास्टर नहीं होता, बल्कि वो मनोविज्ञान और कम्युनिकेशन का भी एक्सपर्ट होता है। अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसे हम दी इंसिडेंट कह सकते हैं, यानी मैदान पर चोट लगने का वो सटीक पल। भाग 4, प्राथमिक उपचार और चोट प्रबंधन। मैदान पर तुरंत सही फैसला लेने के लिए आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि आप किस तरह की चोट का सामना कर रहे हैं। एक तीव्र यानी एक्यूट चोट अचानक होती है, जैसे मौच आना, जिसमें तुरंत तेज दर्द और सूजन होती है। इसके उलट दीर्घकालिक या क्रॉनिक चोट एक खामोश दुश्मन की तरह है। ये बार बार पड़ने वाले दबाव से धीरे धीरे बढ़ती है। आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि आपके सामने कौन सी चोट है, क्योंकि दोनों के इलाज का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह शायद एक प्रशिक्षक के सामने आने वाला सबसे अहम और मुश्किल सवाल है। ये वो पल है जब आपको ये तय करना होता है कि खेल से ज्यादा जरूरी खिलाड़ी का जीवन और उसका भविष्य है। खिलाड़ी को मैदान से बाहर कब बुलाना है, ये पहचानना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये रही वो लाल रेखाएं जिन्हें आपको कभी पार नहीं करने देना है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है, चाहे वो तेज दर्द हो, सिर की चोट हो या सांस लेने में दिक्कत, तो खेल को उसी सेकंड रोक देना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी ही चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई आम चोट लगे तो आपको ये जानी मानी फर्स्ट एड प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, जिसे हम RICE प्रोटोकॉल कहते हैं। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। चोट वाली जगह को हिलने डुलने से रोकना और सूजन को कम करना। बर्फ और हल्का दबाव सूजन को कंट्रोल करते हैं, जो रिकवरी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। चलिए अब हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक चरण की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, पुनर्वास और सुरक्षित वापसी, यानी खिलाड़ी को वापस मैदान पर लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास रातों रात नहीं होता। ये एक एक कदम चढ़ने वाली सीढ़ी की तरह है। ये दर्द को कंट्रोल करने से शुरू होता है, फिर शरीर की मूवमेंट वापस लाई जाती है, उसके बाद ताकत बढ़ाई जाती है और अंत में खिलाड़ी को उसके खास खेल के हिसाब से तैयार किया जाता है। हर एक स्टेप पिछले स्टेप की कामयाबी पर टिका होता है।
यहाँ एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि रिकवरी सिर्फ मैदान या जिम में पसीना बहाने से नहीं होती। शरीर के अंदर जो हीलिंग का काम चल रहा है, उसके लिए सही पोषण या न्यूट्रिशन सबसे बड़ा हथियार है। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और खुद को हाइड्रेटेड रखना, ये सब मिलकर शरीर की अंदरूनी रिकवरी को सुपरफास्ट बना देते हैं। अब खिलाड़ी को मैदान पर वापस उतारने के लिए केवल डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट ही काफी नहीं होती। दर्द खत्म होना और ताकत वापस आना एक बात है, लेकिन क्या खिलाड़ी मानसिक रूप से तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी बात, कोच की स्वीकृति। ये वो आखिरी मोहर है जो ये तय करती है कि हाँ, अब हमारा खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मेडल और ट्रॉफियां तो वक्त के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, लेकिन एक कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोच का असली प्रभाव इस बात में होता है कि वो बुरे वक्त में अपने खिलाड़ियों का हाथ कैसे थामता है। तो खुद से पूछिए, क्या एक प्रशिक्षक की सच्ची विरासत केवल जीती गई ट्रॉफियों में है, या इस बात में कि वो कितनी सुरक्षित रूप से अपने खिलाड़ियों को एक बड़े झटके से वापस मैदान पर लाता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट में आपको बोला गया क्या? कोचेस 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 को ध्यान देना है कि मेरा एथलीट, लास्ट गो कोच ही कहेगा कि मेरा एथलीट परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कोचेस को जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट में कोचेस पे ही फोकस किया गया है। मेडल लेना हमारा काम नहीं है। मेन मेडल कब मिलता है? जब हमारा पैरा एथलीट्स स्पोर्ट्स परफॉर्म्स करने के बाद बिना इंजरी के वापस आता है। तो एक बहुत अच्छा कोच के लिए एक सैल्यूट का समय है। तो आप वो जो कोच बनने जा रहे हैं, वो स्पेशल लोगों के कोच बनने जा रहे हैं, पैरा एथलीट के कोच बनने जा रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छे लोग को ट्रेन देने वाले हैं। तो आप अपने को तैयार करिए अच्छी कोच के रूप में। बहुत और अच्छा शिवाजी डॉक्टर सर साहब। से हमारे बहुत लीडर हैं जो आप लोग को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। और सर ने हमें मौका दिया आपके बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। और कैसा लगा आपको, आप सर को बताइएगा। बहुत और अच्छा लगा वही सर। चीज आप फॉलो कीजिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन चलो क्योर। सर। प्रिवेंशन में फोकस कीजिए, ट्रेनिंग अच्छा कीजिए, डॉक्टर प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रेनिंग डॉक्टर प्रोग्राम कीजिए, साहब डाइट अच्छा लीजिए, डॉक्टर साहब और मसल ट्रेनिंग कीजिए। ओके एंड थैंक जी यू। सर। यस सर। एक सर सवाल था सर। यस। हेलो हाँ हाँ सर, बोलिए। देखिए मैंने ट्रेनिंग भी अच्छे दिए बच्चे को, हर चीज ये उसका सही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव जो आता है सर, उसके कारण क्या है सर? मनोविज्ञान के लिए आपको पहले बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। उसको ऐसी एक्टिविटी करानी पड़ेगी जिसको लेकर उसको कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना? जी सर। ठीक है, पहले शुरुआत इससे कीजिए। और तो अपना एथलीट होगा, कोचेस का तो यही ध्यान रखना है किस तरह अपने एथलीट्स को आप मोटिवेट करते हो। क्योंकि इंजरी के बाद थोड़े एथलीट्स में थोड़ा डर भी होता है। उस डर को दूर करने के लिए यही तो कोच का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जी वो सर। आपके जो सर बिना इंजरी के भी मनोवैज्ञानिक दबाव आते हैं सर, ये भी है सर ना? हाँ, तो उनको मोटिवेट करना जरूरी है। उनको थोड़ा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए, थोड़ी मेडिटेशन करवाइए। मेडिटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव है एथलीट जी के स्ट्रेस लेवल पे, है ना? जी सर। मेडिटेशन हो गया, राजीव ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। आप ये कोशिश कीजिए, देखिए एथलीट अपने आप आ जाएगा उस टाइम पे। राजीव जी बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन इज वंडरफुल। सो वन डे आई विल वी कंडक्ट द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो हमारा एक या दिस सेशन इज रहेगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, विल आंसर ऑल द क्वेश्चन कि क्यों साइकोलॉजिकल हमारा जो है इवैल्यूएशन एंड उसका रोल क्या है, उसका हम अलग क्लास लेंगे। एनी मोर क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनी फील्ड रिलेटेड टू माय फील्ड, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? हेलो चलिए सर। तो या हेलो। यस। सर एक्चुअली मेरी बेटी 16 इयर्स की है। आपने जब वो न्यूट्रिशन और मसल स्ट्रॉन्ग के लिए बोला, तो एक्चुअली मुझे वही लगता है कि एक डाइट प्रॉपर भी डेली होना चाहिए। तो ऐसे कुछ ऑटिज्म में है क्या डाइट चार्ट, या कि डेली प्लान की हम क्या दे सकते हैं उनको ऑटिज्म? वो स्पेशल मिलेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, वो सर करेंगे, है ना? वो एक अलग फील्ड है ना? क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनका न्यूट्रिशन डिफरेंट होता
वाले एथलीट्स का नहीं हो, उसके आपको अलग ट्रेनिंग सिवाई सर देंगे। आप मेरे हाँ, थेरेपी वाले जो we'll लेसन take हम उस पे विल आप टेक द न्यूट्रिशन डाइट के हमारे कोई आएंगे तो आपको उसको भी बताएंगे। यस, मिलेगा आपको। अभी आप स्पोर्ट्स फिजियो जिसे पूछना है, आपके ओके, सारे स्पेशलिस्ट आएंगे। थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी ओके। सर, विजुअल डेविड बोल रही हूँ सर। मुझे ये पूछना था, बहुत जी। सारी स्विमिंग एक्टिविटी जब हम बच्चों को कराते हैं स्विमिंग के लिए, मैंने खुद देखा है कोचेस को जो मेरे सेंटर में है, वो एक समय पे क्या करते हैं, बच्चों को फेंकने लगते हैं पानी में ताकि वो डर के खुद स्विम। ये ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा, तो बच्चे कैसे वो डर जाते हैं, और क्या उनको इंटरनल इंजरीज हो सकती है ये करने से सर, पानी की वजह से? देखिए, इंजरी कब होती है? जब हम मसल्स को ऐसा काम करवाते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है, तो इंजरी होना है। इसका ध्यान देना है कोचेस को। मसल अगर आपका तैयार नहीं है, उसको वो एक्टिविटी करा रहे हैं जो उस बच्चे का एक लेवल होता है, मसल्स का भी एक लेवल होता है हर बच्चों का, ठीक है। अगर वो मसल लेवल उस बच्चे का नहीं है और जब ओवर एक्टिविटी अगर आप करा रहे हैं, तो इंजरी का चांस उसमें 100% है। So it is dangerous to throw the children in the water directly. आपकी आवाज थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं है। It is dangerous to throw the children in the water. हाँ, डेंजरस तो है ही, कई सारी इंजरी हो सकती है उसमें। Okay, okay, fine, sir. Thank you so much, sir. हम्म। चलिए तो बहुत अच्छा रहा डॉक्टर अश्विनी जी। इट वाज वेरी वंडरफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव एंड योर एक्सप्रेशन हमारे बहुत फायदा होंगे। सो वी थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला और हमारे कोचेस को आपने प्रशिक्षण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी के साथ जो है आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर कल रिमेम्बर कल अवतार सिंह साहब है क्या? कल हमारे अमेरिका से एक गेस्ट रहेंगे, वो बोची के ऊपर लेंगे, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो आपको देखिए बाहर बाहर से भी लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। सो हम कल का बताएंगे, अगर उनके समय मिल जाता है तो फिर हम लोग उनका भी देंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नेट नाइट। सर। Thank you so much, doctor. Thanks a lot. थैंक यू।